بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو پاشا ٹی وی۔ بہت شکریہ میری لاسٹ ویڈیوز کو پسند کرنے کے لیے۔ آئیے آج اپنی کہانی کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ تو چلتے ہیں آج کی اس کہانی کی طرف۔ اس نے یہ سوچتے ہی شمال کی سمت سفر کرنا شروع کر دیا۔ چرمی تھیلا اس کے کندھے کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ سفلی دنیا میں یہ ایک عجیب بات ہے کہ اگر چھوٹی شکتی رکھنے والا اگر کسی بڑی شکتیمان سے کوئی کام لے گا تو اسے اپنی ایک شکتی بلیدان کرنا پڑتی ہے۔ اس سے پہلے وہ ناگ دیوتا سے مدد لے کر اپنی ایک شکتی اسے دان کر چکا تھا۔ اب اسے پیدل چلنا عذاب لگ رہا تھا۔ حالانکہ وہ اگر چاہتا تو اپنی ایک شکتی دے کر کسی بڑی شکتیمان سے انن قالین یا کوئی اور سواری اپنے لیے منگوا سکتا تھا، لیکن یہ سوچ کر اس نے پیدل سفر کرنا مناسب سمجھا کہ ابھی پتہ نہیں اسے کالی پہاڑیوں میں کن حالات میں کون سی شکتی سے کام لینا پڑے گا، اس لیے اس نے پیدل سفر کرنے کو ترجیح دی۔ اس طرح اسے اپنی منزل تک پہنچنے میں کچھ دیر لگ سکتی تھی، مگر اس طرح وہ اپنی ایک شکتی کو بچا سکتا تھا۔ اس نے گرو کو یاد کر کے شمال کی جانب سفر کرنا شروع کر دیا، اور اسے اس بات کی بھی فکر تھی کہ 2 روز بعد 14ویں کی رات تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ 5 سندر ناریوں کے سروں میں چھٹے سر کا اضافہ نہ ہو سکے، اور اس سے پہلے ہی وہ سادھو کو ہلاک کر کے اس قصے کو پاک کر دے۔ وہ خود بھی اس مسئلہ سے اکتا گیا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد اس سے جان چھڑوا کر واپس اپنی دنیا میں لوٹ جانا چاہتا تھا۔ اسے دن رات سفر کرتے دوسرا روز تھا۔ اسے اپنے سامنے ایک گھنا اور بھیانک جنگل دکھائی دیا۔ وہ چلتا ہوا اس میں داخل ہو گیا۔ جنگل میں درخت آپس میں اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ ان میں سے سورج کی روشنی تک نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے دن کے وقت بھی جنگل میں خوفناک حد تک تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا، راستہ ٹٹولتا آگے بڑھتا رہا۔ اسے اس بات پر شدید حیرت تھی کہ اس بھیانک جنگل میں اسے کوئی موذی درندہ تک دکھائی نہ دیا تھا۔ حالانکہ اس طرح کے بھیانک اور خوفناک جنگل میں موذی جانوروں کا پایا جانا یقینی تھا۔ وہ یہی سوچتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک مسلسل پیدل چلنے کے بعد اسے سامنے کے رخ روشنی دکھائی دی، اور درختوں کی تعداد بھی کہیں کہیں کم تھی، اور اب کہیں کہیں جنگلی گھاس اور جنگلی سیب کی جھاڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے ایک جھاڑی سے 2-3 جنگلی سیب توڑے اور انہیں اپنے معدے میں اتار لیا۔ اس سے اسے تازگی کا ایک خوشگوار احساس ہوا۔ کچھ دور اور چلنے کے بعد وہ جنگل سے نکل آیا۔ اب چاروں طرف روشنی پھیل گئی تھی۔ مسلسل اندھیرے میں چلنے سے ایک دم روشنی میں آنے سے اسے عجیب سا احساس ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اس کے سامنے ایک چمکدار ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس کا سفید سفید پانی جھاگ اڑاتا ہوا بہ رہا تھا، اور اس کا پاٹ کم از کم 40 فٹ چوڑا ضرور ہوگا۔ وہ دریا کے پانی پر نظریں جمائے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی تھی، جس سے پانی کا بہاؤ تھا۔ اس طرف سے اسے پانی کے اندر ایک سرخ لکیر جس کی موٹائی تقریباً 3 انچ ضرور ہوگی ایک پٹی کی صورت بہ رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ خود کو سنبھال کر دریا کے کنارے کے قریب کیا اور ہاتھ بڑھا کر اس لکیر پر انگلی رکھ دی۔ اس میں سے کچھ لیا اور پھر اس کو سونگھ کر سر ہلانے لگا۔ یہ انہی سندر ناریوں کی گردنوں سے ٹپکنے والا خون تھا جسے وہ تلاش کر رہا تھا۔ خون اس قدر گاڑھا تھا کہ وہ پانی میں حل ہونے کی بجائے ایک پٹی کی صورت میں بہ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اٹھا اور دریا کے اس طرف چلنے لگا جہاں سے پٹی آ رہی تھی۔ دور دور تک کسی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ آسمان پر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گرمی کی شدت سے چرند پرند بھی اپنے اپنے ٹھکانوں میں پکے ہوئے تھے۔ وہ دریا کے ساتھ چلتا چلتا کافی دور نکل آیا تھا۔ جنگل اب بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ مسلسل پیدل چلنے کے ساتھ اس کے پاؤں سوج کر کپا ہو گئے تھے۔ اس نے کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا اور دریا کے دائیں کنارے پر لگے ایک بوڑ کے پیڑ کے نیچے ایک صاف جگہ کر کے چرمی تھیلا اپنے سر کے نیچے رکھ کر آنکھیں موند لی، اور جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے 10 منٹ ہی بمشکل ہوئے ہوں گے کہ اسے اپنے پاؤں پر تکلیف کا احساس ہوا، اور یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ایک تیزدار خنجر سے اس کے پاؤں کی چھوٹی انگلی کاٹ دی ہو۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے پاؤں سے چند انچ کے فاصلے پر ایک عجیب و غریب مکڑی جس کے منہ کی جگہ تیزدار برمے کی مانند چونچ تھی، اور اس کا جسم
एक गुब्बारे की मानद फूल और पिचक रहा था और इसके अंदर सब्जी माइल जहर साफ नजर आ रहा था। इसने इसे देखते ही जल्दी से चर्मी थैले में हाथ डालकर एक मरहम निकाला और इसे जल्दी से अपनी उंगली पर मसल लिया और इसके साथ ही अपनी खड़ाऊ उठाकर इस मकड़ी पर दे मारी। खड़ाऊ किसी ईंट की तरह इस मकड़ी के जिस्म पर पड़ी। इसके जिस्म से गंदा मवाद उबल पड़ा। मकड़ी के आसपास जो घास फूस लगी थी इस मवाद के लगते ही धुआं बनकर उड़ गई। भोलेनाथ होंकों की मानद कभी इस मकड़ी की तरफ और कभी राख बनी घास फूस को देख रहा था और दिल ही दिल में गुरु का शुक्र अदा कर रहा था। इसकी बरवक्त आंख खुल गई और इसके पास लाजोंती मरहम भी मौजूद थी, वरना इससे आगे वो कुछ ना सोच सका। और अब इसने आराम करना मुनासिब ना समझा और अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया। तकरीबन 5-6 कोस चलने के बाद इसके कानों में किसी के आबशार के गिरने की आवाज़ पड़ी। इस आवाज़ को सुनते ही इसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। वो जल्द अज जल्द इस मामला को ख़त्म करना चाहता था। दाएं तरफ दरख्तों का एक झुंड दिखाई दिया। इसने अपने कदम इस झुंड के जानब बढ़ा दिए और जब वो इसके नज़दीक पहुंचा तो इसे इसके अंदर एक बहुत बड़ा आबशार नीचे ज़मीन पर गिरता दिखाई दिया। आबशार का पानी भूरे रंग की एक चट्टान से चादर की शक्ल में ज़मीन पर गिर रहा था और इसके गिरने से एक ज़ोरदार आवाज़ पैदा हो रही थी। आबशार के ऊपर एक बहुत बड़ा शाहबलूत का दरख्त नजर आ रहा था जिस पर बेड़े की शक्ल के फल लगे नजर आ रहे थे। दरख्त की ऐन मोटी शाख पर 5 औरतों के सर कटे लग रहे थे। इन चोटियों को बल देकर दरख्त की मोटी शाख के साथ मजबूती से बांध दिया गया था। सर गर्दनों तक कटे हुए थे और इनमें से निकली हुई रगें और नसें दूर से नजर आ रही थी। इनकी गर्दनों से मुसलसल खून टपक कर आबशार के पानी में गिर रहा था। खून के मुसलसल गिरने की वजह से पानी में खून के जमने से एक चादर बन गई थी और इसमें से एक पतली सी धार चश्मे के पानी के साथ साथ फल खाती आगे तक चली गई थी। वो इसी पतली धार के सहारे ही यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हुआ था। इसने अपना चर्मी थैला एक तरफ रखा और कपड़े उतार कर पानी में घुस गया। चश्मे का पानी यख ठंडा था। इसे निहायत ही लुत्फ महसूस हो रहा था। इसने स्नान करने के बाद वो कपड़े पहने और चर्मी थैला हाथ में उठाकर झुंड से बाहर निकल आया। कुछ दूर चलने के बाद इसने मुंह में एक मंत्र पढ़कर फिजा में फूंका तो कहीं से एक हुदहुद नमूदार हुआ और पुकारने लगा, तबदारी हाजिर है महाराज। तबदारी, ये बताओ, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने सुर्ख चश्मे से गुस्ल कर लिया है, अब मुझे क्या करना होगा? भोलेनाथ ने इसे देखते ही कहा, महाराज आप मशरिक की जानब सफर शुरू कर दें। चंद कोस तक चलने के बाद आपको एक वीरान बाग नजर आएगा। इस बाग को अबूर करने के बाद रेतला इलाका शुरू होगा। इसमें आपको एक कच्चा मकान नजर आएगा। इस मकान में एक कुआं है। इसके पानी की ये तासीर है कि इसके बदन पर लगते ही रात के वक्त भी आप दिन की तरह देख सकेंगे। इसके अलावा आप चूंकि सुर्ख चश्मे से गुस्ल कर चुके हैं इसलिए आप भीतर नाड़ी नामी चुड़ैल की नजरों से ओझल रहेंगे। आपको अब मुसलसल 3 रोज तक पैदल सफर करना होगा और रात दिन चलते रहना होगा। इसलिए रात के अंधेरे में देखने के लिए इस कुएं का पानी लाजमी हासिल करना होगा। उसी सूरत में महाराज आपको सिर्फ दिन की रोशनी में ही सफर करना होगा। हुदहुद ने फुदफुदाते हुए कहा, लानत हो तुम पर, तुम्हारे कुएं पर तुम सिर्फ मच्छरों के सिवा और कोई काम नहीं कर सकते। भोलेनाथ ने मुंह बनाते हुए गुस्से से कहा, क्षमा हो मेराज, हमारी शक्ति सिर्फ इसी कारण जवाब दे सकती है और इसके सिवा हम भगवान के आगे मजबूर हैं। तबधारी ने सहमे हुए लहजे में कहा, ठीक है, अब तुम अपनी मनहूस सूरत लेकर दफा हो जाओ। भोलेनाथ ने उकताते हुए लहजे में कहा। इसकी जुबान से ये अल्फाज निकलते ही हुदहुद गायब हो गया। इसके गायब होते ही भोलेनाथ ने अपना सफर मशरिक की जानब शुरू किया और मुसलसल 4 कोस तक चलने के बाद इसे बाग नजर आया जहाँ जिसमें जा बजा झाड़ झंकार उगा हुआ था। वीरान बाग की हालत से अंदाजा होता था कि इससे इस हालत में सदियां बीत गई हैं। कहीं कहीं का दरख्त नजर आ रहे थे, ज्यादातर जंगली घास उगी हुई थी। भोलेनाथ हैरत से इधर उधर देखा, आगे बढ़ता रहा। जल्द ही बाग से निकलकर वो एक रेतले इलाके में निकल आया। चारों तरफ रेत ही रेत उड़ती फिर रही थी। कहीं कहीं टनमन धंधा थोर के पौधे सर उठाए खड़े थे और रेत में जर्द रंग की रेगिस्तानी छिपकलियां भागती साफ नजर आ रही थी। भोलेनाथ आंखें नीचे इधर उधर तक देख रहा था और इसे कच्चे मकान की तलाश की जिसके बारे में तबधारी ने इसे बताया था। रेत कदम बढ़ा दिए। कुछ दूर तक चलने के बाद इसको चंद फरलांग के फासले पर एक कच्चा मकान नजर आ गया। इसने दिल ही दिल में अपने अंदाजे की दाद दी और गुरु का शुक्रिया अदा करते हुए इस मकान की जानब कदम बढ़ा दिए। मकान मुकम्मल तौर पर कच्चा था और इसका मेन दरवाजा टूटा हुआ था। मकान की दीवारें शिकस्ता हो गई थी। यूं लगता था जैसे किसी भी वक्त जमीन बोस हो जाएंगी। एक तरफ ऊंची मंडेर बनी हुई थी। भोलेनाथ समझ गया कि यही
کنواں ہے۔ اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ ایک صدیوں پرانا کنواں تھا جس پر ایک پوشیدہ رسی اس کے ساتھ لوہے کا ڈبہ بندھا ہوا تھا۔ ڈبے میں جا بجا سوراخ نظر آ رہے تھے۔ گردش لیل و نہار کے باعث اس کا زنگ سے برا حال تھا۔ بھولے ناتھ نے رسی کو کھول کر اس کے ساتھ بندھے ڈبے کو کنویں میں پھینک دیا۔ کنواں اندر سے تاریک نظر آ رہا تھا، نہ جانے اس میں پانی ہے بھی کہ نہیں، یہ تو ڈبے کے واپس آنے پر ہی پتہ چل سکتا ہے۔ بھولے ناتھ نے رسی کو ادھر ادھر ہلا کر دوبارہ اوپر کھینچ لیا۔ ڈبے میں اسے تھوڑا سا پانی جس میں آدھا کیچڑ ملا ہوا تھا نظر آیا۔ بھولے ناتھ نے جلدی سے اس میں ہاتھ ڈال کر اپنی چلو میں لے کر پانی قمیص پر مل لیا اور بعد میں کیچڑ کو ڈبے کے اندر اچھی طرح مل لیا، جس سے اس کے سوراخ کس قدر بند ہو گئے تھے۔ پھر اسے دوبارہ پانی میں ڈال دیا اور ایک جھٹکے سے واپس کھینچ لیا۔ ڈبے میں آدھے سے زیادہ پانی موجود تھا یا نکل گیا تھا۔ اس نے جلدی سے پانی لے کر اپنی قمیص پر مل لیا۔ اسی طرح اس عمل کو مزید 2-3 بار دہرانے کے بعد اس کی قمیص سامنے سے گیلی ہو گئی تھی۔ اس نے ڈول کو واپس کنویں میں پھینک دیا۔ ہر طرف ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا۔ اب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ بھولے ناتھ اس کی کوشش میں تھا کہ اب سفر آگے شروع کرے یا کچھ دیر آرام کرے۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے آگے جانے کو ہی ترجیح دی، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی لاپرواہی سے سادھو کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہی سوچ کر اس نے رات کے اندھیرے میں آگے بڑھنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ کنویں کے پانی کی وجہ سے اسے رات کے وقت دیکھنے میں آسانی محسوس ہو رہی تھی۔ ساری رات سفر کرنے کی وجہ سے اس کے بدن میں اب تکلیف ہونے لگی تھی۔ اس نے یہ سوچ کر دن کے وقت کہیں 2 گھنٹے آرام کر لوں گا اپنا سفر جاری رکھا۔ اب ہر طرف سحر پھوٹنے لگی تھی۔ دن کا اجالا دھیرے دھیرے ہر سو پھیلنے لگا تھا۔ اس نے ریگستان سے چلتے وقت اپنا رخ مشرق کی جانب ہی رکھا تھا، اس لیے اسے راستہ بھٹکنے کا کوئی خوف نہ تھا۔ اب وہ ایک بیابان علاقے سے گزر رہا تھا جس میں صفائی سکی اور خشک گھاس کے اور کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اسے پتہ چلتے چلتے ایک زرد رنگ کے اژدھے اور جنگلی بلی کو بھی آپس میں گتھم گتھا دیکھا۔ دونوں آپس میں ازلی جنگ لڑنے میں مصروف عمل تھے۔ اس نے انہیں چھیڑنے کی بجائے اپنا سفر جاری رکھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس نے درختوں کا لامتناہی سلسلہ دیکھا۔ درختوں کی بہتات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک ذخیرہ ہے۔ اس نے یہ سوچ کر شاید یہاں آرام کرنے کے لیے 2-3 گھنٹے میسر آ جائیں گے، اپنا رخ ان درختوں کی طرف موڑ لیا۔ درختوں کے نزدیک پہنچ کر اس نے ایسے سایہدار درخت کو تلاش کیا جس کے نیچے وہ 2 گھڑی آرام کر سکے۔ جلد ہی اسے پیپل کا ایک بڑا سا درخت دکھائی دیا جس کے تنے کی گولائی کم از کم 10 فٹ ضرور ہوگی۔ اس نے ایک طرف قدم بڑھائی اور تھوڑی سی جگہ صاف کر کے اپنا چرمی تھیلا سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شام کے سائے گہرے ہوتے چلے گئے تھے۔ پرندے آسمان کی بلندیوں پر اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے۔ اس نے ایک زوردار انگڑائی لے کر تھیلا بغل میں دبایا اور آگے کا سفر شروع کر دیا۔ مسلسل سفر کرتے اس کا سامنا بہت سے جنگلی جانوروں اور ایک خشک دریا سے ہوا۔ دریا پار کر کے وہ ایک ایسے علاقے میں آن پہنچا جہاں ہر طرف میدان میں سنگی مجسمے نصب تھے۔ مجسموں کی شکلیں عجیب و غریب تھیں۔ کسی کی آنکھیں غائب تھیں، کسی کا ایک بازو غائب تھا، کوئی بغیر سر کے تھا اور کسی کی ٹانگ غائب تھی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ وہ جیسے ہی ان مجسموں کے درمیان پہنچا تو اسے محسوس ہوا جیسے سب کے سب اچانک زندہ ہو گئے ہیں اور اس کو دبوچنے کے لیے بے قرار ہوں۔ صرف اس کا احساس تھا، ورنہ ان مجسموں کی ساکت ہی رہنا تھا اور وہ ساکت ہی تھے۔ اس نے سر کو جھٹکتے ہوئے اپنے قدم تیز کر لیے۔ بعد میں اسے اپنے پیچھے قہقہوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ خود جادو نگری کا باشندہ تھا، اس لیے ایسے شبدوں پر کان دھرے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ یہ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت ہوگا جب چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا زمین پر دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ایک خونخوار چہرے کی مالک چڑیل جس کے لمبے لمبے دانت اس کے جبڑوں سے باہر نکلے ہوئے تھے اور اس کے بال سر کنڈوں کی مانند آسمان کی جانب اٹھے ہوئے تھے اور ہاتھوں کے ناخن تیزدار چھریوں کی طرح مڑے ہوئے تھے، ایک غار کے دھانے پر ٹہل رہی تھی۔ اس کی نظریں سرچ لائٹ کی مانند ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی لالی سے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی کسی جانور کا خون پی کر آئی ہے۔ یہ بیتل ناڑی چڑیل تھی جسے سادھو نے کالی پہاڑیوں میں داخل ہونے والے غار کے دھانے پر پہرے پر بٹھایا تھا۔ سادھو نے اس کو ایسی شکتی دی تھی کہ کوئی جاندار اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا تھا، لیکن یہ سادھو کی خام خیالی تھی کیونکہ تب دھاری اس کا توڑ نکال چکا تھا اور بھولے ناتھ کو سرخ چشمے سے غسل کرنے والی ترکیب بتا کر اس کا یہ ہرپکا ناکام ہو چکا تھا۔ بھولے ناتھ کی شکل میں سادھو کی بھیانک موت لمحہ بلمحہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ ایک بڑی سی غار تھی جس
जिसकी सैलनज़दा दीवारों से पानी के कतरे टपक रहे थे। एक तरफ साधु धोनी धाए आसन जमाए बैठा था और उसके सामने पत्थर का एक बड़ा सा प्याला धरा था जिसमें इंसानी दिमाग का मलगूबा और खून था। वो मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़ रहा था और साथ साथ हाथ से एक जानब रखा तंदूर लेकर प्याले में डालता जा रहा था। तंदूर की वजह से गार में एक अजीब और नागवार सी बू फैली हुई थी। साधु के जिस्म पर एक लंगोट के सिवा कुछ नहीं था और इसके सर पर झूलती वाहिद बालों की लट गधे की पूंछ की मानद इधर उधर लहरा रही थी। वो बार बार मंत्र पढ़कर प्याले पर फूंके मारता जा रहा था कि अचानक इसके जिस्म को झटके लगने लगे। इसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से सुर्ख हो गया और इसकी आंखें बेनूर हो गईं और इसकी सफेद आंखें स्याह पुतलियों से आ रही थी। वो टिटकी जमाए अपने सामने वाली दीवार को घूम रहा था कि यकदम एक चबाका हुआ और सामने की दीवार पर एक बहुत बड़ी मकड़ी का हविला नमदार हुआ। मकड़ी का साइज कमोबेश गेंडे की जिसामत से मिलता जुलता था। इसका जिस्म गुब्बारे की मानद फूल और पचक रहा था। साधु इस पर नजरें जमाए मुंह ही मुंह में अजीबोगरीब अल्फाज पढ़ रहा था कि अचानक गार में एक गैर मर्गी आवाज गूंजी, अनकबूत हाजिर है महाराज, क्षमा कीजिए कि सुनहरी दलदल से वापसी में देर हो गई। मकड़ी के मुंह से एक अजीब से लहजे में आवाज आई, क्षमा दी, मुझे भोलेनाथ के बारे में बहुत फिक्र है। इसने मूर्ख पंख की मोट कब्जे में कर ली है, इसलिए मुझे इसका कोई उपाय बताओ। साधु ने जवाब में कहा, महाराज आपको चिंता करने की जरूरत न है। फिलहाल भोलेनाथ आपकी पहरेदार बेतेल नाड़ी के पास ही पहुंचा है, इसलिए अभी इसे काली पहाड़ियों में दाखिल हो जाने दे। इसके बाद आपकी ताबेर हुए इसकी हत्या कर देगी। अनकबूत ने इसे तसल्ली दी। नहीं, अब जब कि वो गार के दहाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है तो मैं चाहता हूँ कि काली पहाड़ियों से पहले ही इसका काम क्रियाक्रम कर दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे सामने आ जाए और मुझे बाद में कोई उपाय करके नुकसान उठाना पड़े। साधु ने जिद करते हुए कहा, महाराज आप जबकि आप वजीद हैं तो मैं आपको ये बताने पर मजबूर हूँ कि आप भोलेनाथ के हाथों बहुत कष्ट भोगेंगे, क्योंकि इसके पास जो शक्तियाँ हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का कारण बनेगी। आप भोलेनाथ सुर्ख चश्मे के पानी से गुसल करके आ रहा है, जिसकी वजह से वो बीतल नाड़ी को नजर नहीं आएगा और हमें इस पर भरोसा करके नहीं बैठना होगा। आपको इसके लिए काले इल्म का एक खास अमल गोगिया पाशा हासिल करना होगा, क्योंकि इसके बगैर आप सुर्ख चश्मे के पानी का तोड़ नहीं कर सकेंगे। मैं आपको ये तमाम तफसील ना बताती, मगर आपकी खातिर मैंने अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने गुरु का मान तोड़ा है, इसलिए अब मैं खुद हत्या कर रही हूँ, क्योंकि अगर गुरु को ये मालूम हो गया कि मैंने अपनी शक्ति से बढ़कर काम लिया है तो वो हमेशा के लिए मुझे चाह बाबल हंजरा में फेंक देगा। इसलिए वहाँ की दर्दनाक और भयानक मौत की बजाय मैं आसानी से अपनी जिंदगी खत्म करना पसंद करूंगी। ये कहते हुए इसने अपनी सांसें रोककर एक झटका लिया और इसका जिस्म गुब्बारे की मानद फटा और दीवार सपाट हो गई। साधु होंकों की मानद मुंह खोले सपाट दीवार को तक रहा था। इसके जिस्म पर एक लर्जा सा तारी हो गया था। इसने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर अपने सामने रखा, प्याला उठाया और इसमें मौजूद इंसानी दिमाग खाने लगा। बाद में इसमें बच जाने वाला मलगूबा पिया और एक डकार लेकर उठ खड़ा हुआ। इसने जल्द अज जल्द गोगिया पाशा हासिल करने का फैसला कर लिया था। भोलेनाथ जैसे ही एक मोड़ मुड़ा, इसे रात के अंधेरे में एक संगी दीवार दिखाई दी। गौर से देखने पर पता चला कि ये एक देवकामत पहाड़ है, जिसके सामने के रुख एक बड़ी सी गार का दाना दिखाई दे रहा था। इसके सामने एक वहशतनाक चेहरे की मालिक चुड़ैल बेकरारी के आलम में टहल रही थी। इसका भयानक चेहरा चांद की दूधिया रोशनी में खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। इसके हाथों इसकी उंगलियों के नाखन खंजर की मानद चमक रहे थे। भोलेनाथ कुछ देर खड़ा इसकी तरफ देखता रहा, फिर कुछ सोचकर इसने आगे कदम बढ़ा दिए। जब वो इससे 30-40 कदम दूर रह गया तो इसने देखा कि चुड़ैल के देखने और टहलने के अंदर में जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा, तो इसे कुछ हौसला हुआ और फिर ये सोचकर इसे मजीद तकवीत मिली कि वो सुर्ख चश्मे के पानी से गुस्ल कर चुका है और तबदारी के कहने के मुताबिक इसे भीतल नाड़ी चुड़ैल देख नहीं पाएगी। इसलिए वो बेफिक्री से आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता आगे बढ़ता रहा। सामने ही गार का दाना मुंह फाड़े खड़ा था। दूर से देखने पर यूं लगता था जैसे पत्थर का कोई बड़ा मुजस्मा दोनों कंधे जमाए जमीन पर देख रहा हो। वो एक झुकाई देकर चुड़ैल के पहलू से बचकर निकल गया और गार के अंदर कदम रख दिया। गार के अंदर तारीकी फैली हुई थी और एक नामूस किस्म की बू दूर दूर तक फैली हुई थी। वो अंदर अंधेरे में आंखें फाड़े रास्ता टटोलता आगे बढ़ता रहा। इसे इस बात का भी डर था कि कहीं किसी गड्ढे में न जा गिरे। दूर कहीं एक जुगनू सा चमकता दिखाई दे रहा था। वो समझ गया कि वो गार का दूसरा दाना है। वो इस
की रोशनी के दायरे पर टिकटिकी बांधे अपने आगे बढ़ रहा था। अभी इसने चंद कदम ही चले होंगे कि इसे अंधेरे में घुर्राहट सुनाई दी। वो ठिठक कर रह गया और अंधेरे में गौर से देखने की नाकाम कोशिश करने लगा। घुर्राहट से अंदाजा हो रहा था कि अंदर कहीं खतरनाक जानवर घुसा बैठा है। वो एक लम्हा मजीद सुन लेने के बाद दोबारा चल पड़ा। चर्मी थैले को इसने मजबूती से अपने दाएं हाथ में थामा हुआ था कि अचानक इसके कंधे पर एक भारी हाथ आन पड़ा। वो उछलकर एक तरफ हट गया, मगर इतनी सी देर में इसको अपने कंधे की हड्डी टूटती महसूस हुई और इसे अंधेरे में दूसरी आंखें चमकती दिखाई। आंखों की बनावट गोल और गहरी सुर्ख थी। भोलेनाथ ने उछलकर खुद को इसके दूसरे हमले से बचा लिया और जल्दी से थैले में हाथ डालकर एक लोहे की सलाख निकाल ली। सलाख का साइज 1.5 हाथ के बराबर था, मगर भोलेनाथ ने जैसे ही एक मंत्र पर फूंका, इसका साइज बढ़ना शुरू हो गया। इसने सलाख के बड़ा होते ही इसको घुमाकर इन सुर्ख आंखों के ऐन दरमियान में दे मारा, मगर सलाख लगते ही ऐसी आवाज आई जैसे सलाख किसी लोहे की चीज से जा टकराई हो। भोलेनाथ ने बेवकूफों की मानंद आंखें घुमाए हुए हैरत से इधर उधर तकने लगा। अभी वो इस मसले पर गौर कर ही रहा था कि इसके सीने पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ खाते ही भोलेनाथ उछलकर उसके बल जमीन पर जा गिरा। थैला इसके हाथ में था। जैसे ही इसने मजीद मजबूती से थाम लिया, वो समझ गया कि वो साधु की किसी ताबे रूह से उलझ पड़ा है। अब इसने इसके साथ मुकाबला करने के लिए काले इल्म के चाप इस्तेमाल करना मुनासिब समझा। इसलिए ये सोचते ही थैला बाजू के साथ लटकाया और मुंह में एक मंत्र पढ़कर इस बला की जानब फूंक दिया। इसके मुंह से एक सफेद रंग की गेंद निकलकर इस बला से जा टकराई और यकदम एक छुपा कासा हुआ और एक लम्हे के लिए गार में रोशनी फैल गई और फिर तारीकी छा गई और इस एक लम्हे की रोशनी में ही इस अनदेखी बला की हकीकत खुल गई थी। इसका कद बनमानस की तरह था और जिस्म स्याह बालों से ढका हुआ था और उसके पाँव की 6 उंगलियां थी, जिनमें बड़े बड़े मुड़े नाखून बहुत भयानक लग रहे थे। भोलेनाथ ने सिर्फ इसको देखने के लिए ही रोशनी का गोला फेंका था। अब जबकि इसको इसकी माहियत का पता चल गया था तो इसने इसके लिए एक तरह का उपाय तलाश कर लिया था। इसने जल्दी से थैले में हाथ डालकर एक रस्सी निकाली जिसके एक सिरे पर 4 कोनों वाला सितारा बंधा हुआ था। इसमें से सफेद रंग की फुलझड़ियां सी निकल रही थी। इसने रस्सी को घुमाकर अंदाजे से इस बला की तरफ उछाल दिया। रस्सी का दूसरा सिरा इसके दूसरे हाथ में ही रहा। सितारा तेजी से उड़ता हुआ इस बला की जानब बढ़ा और सीधा इसकी दोनों आंखों के दरमियान में जा घुसा। ये मुखमंडल था इसके गुरु की निशानी। इसके गुरु के कहने के मुताबिक इसमें एक ऐसी तासीर थी कि अगर फौलाद में भी सुराख करना चाहे तो इस सितारे के नोकीले सिरे की मदद से वो भी कर सकते हैं। इसने सबसे पहले इस चीज़ को आजमाने का फैसला कर लिया था, जो कि कामयाब रहा। सितारे की नोक घुसते ही इसकी भयानक चीख गार की खामोशी में एक एटम बम की तरह गूंज उठी। न जाने सितारे में क्या खास बात थी कि इसे इतनी सख्त अजियत से दो चार होना पड़ा था। ये तिलिस्म की दुनिया थी, यहाँ सब कुछ मुमकिन था। ये हैरतों की दुनिया थी, जहाँ सोचने समझने वाला खुद पागल हो जाता था। कुछ देर तक गार में इस बला की अजियतनाक और भयानक चीखें गूंजती रहीं। इसके बाद इस तरह खामोशी छा गई जैसे गार में कोई भी आहट तक ना हुई हो। भोलेनाथ को भीतर नाड़ी चुलेर की भी फिक्र थी, क्योंकि इसे इस बात का कोई इम्कान था कि इस मरने वाले मौसी की करबनाक चीखों से कहीं वो गार के अंदर ना घुस आए और इसे इसका भी कोई उपाय करना पड़े। लेकिन ये इसकी खाम ख्याली थी, क्योंकि गार के पहले दाने पर मुसलसल खामोशी थी। इसने कुछ इधर उधर देखा, फिर आगे बढ़ा। जुगनू का साइज अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। गार के दूसरे दाने से 15 कदम दूर ही था कि अचानक दाने पर एक बेवन आन कूदा। बेवन की थोथनी चांद की रोशनी में चमक रही थी। इसके होंठों का रंग गहरा सुर्ख था, जिससे इसकी वहशत में मजीद इजाफा हो गया था। इसकी खुनख्वार आंखों में बेपनाह वहशत छाई हुई थी। पंजों के मुड़े हुए नाखून दूर ही से साफ नजर आ रहे थे। भोलेनाथ इसे देखते ही अटक कर रह गया। दाने के नजदीक पहुंच जाने की वजह से वो भी बबून की नजरों में आ गया था। इसलिए इसने दोबारा तारीकी में छुपना मुनासिब न समझा। बबून ने इस पर निगाहें जमाते हुए उछलकर इसकी गर्दन को दबोचना चाहा, मगर भोलेनाथ झुकाई देकर एक तरफ हट गया और बबून अपनी मस्ती में आगे निकल गया। इतना मौके से फायदा उठाते हुए भोलेनाथ ने गार के दाने की जानब दौड़ लगा दी, क्योंकि गार के अंदर मुकाबला करने की निस्बत गार के बाहर मुकाबला करना आसान था। इसलिए वो एक लम्हा जाया किए बगैर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही इसने चर्मी थैले में हाथ डालकर सुर्ख खंजर निकाल लिया और जैसे ही बबून दौड़ता हुआ गार से बाहर निकला, इसने ताक कर खंजर इसके सीने पर दे मारा, मगर बबून भी शैतानी रूह था, इसलिए साफ बच निकला। सुर्ख खंजर इसके पीछे गार के अंदर जा गिरा। भोलेनाथ ने
वार खाली जाते देखकर एक मंत्र पढ़कर फूंका तो फिजा में एक अजीब खलकत किस्म का परिंदा अचानक नमूदार हुआ और इसकी चोंच 2 फुट लंबी थी। दोनों जानब से आरी के दंदानों की मानत तेज थी। इसने बबून को देखते ही इस पर हमला कर दिया। बबून ने अपने बचाव की बहुत कोशिश की, मगर परिंदा इस पर हमला करते ही फिजा में बुलंद हुआ और कुछ ही देर में सामने बबून मुर्दा हालत में पड़ा था और परिंदा इसके हलाक होते ही दोबारा गायब हो गया। भोलेनाथ को इस परिंदे से मदद लेने की खातिर सुर्ख चश्मे वाली शक्ति बलिदान करना पड़ी थी। अब वो दोबारा भीतर नाड़ी से बच निकल कर नहीं सकता था। बबून के मरते ही इसने गौर से अपने चारों तरफ देखा तो इसे चारों तरफ अजीब किस्म की वीरानी फैली दिखाई दे रही थी। हर तरफ बुलंद बाला पहाड़ सर उठाए खड़े थे। हर पहाड़ में कम से कम 30-40 गार दिखाई दे रहे थे। वो इसी सोच में गुम था कि साधु न जाने कौन सी गार में छुपा हुआ है और वो बिच्छू न जाने कौन सी तह में कैद है जिसमें इसकी जान है। अभी वो मुश्किल शशपंज में था कि अचानक से सामने 4-5 रूहें आती दिखाई दी। इनके चेहरे घूंघटों में छुपे हुए थे और इनके सियाह हाथ चांद की रोशनी में अजीब मंजर पेश कर रहे थे। वो नाक की सीध में इसकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। इसके चलने से महसूस हो रहा था कि वो चलने की बजाय पानी पर तैरती आ रही हूँ। भोलेनाथ मुंह फाड़े इनकी तरफ देखता रहा। इसका ज़हन माऊफ हो गया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इन पर कौन सा वार करे। इसको सोचते ही रूहें इसके सर पर आन पहुंची। वो 5 हाथ पिलाए और घेरा बनाए इसको पकड़ने के अंदाज में आगे बढ़ी। भोलेनाथ एक झटका लेते हुए होश में आया और दौड़कर परे हट गया। इसके परे हटते ही रूहें दोबारा चीखती हुई इसकी जानब पड़ी, मगर अब भोलेनाथ को संभलने का मौका मिल गया। इसने एक मंत्र पढ़कर इन रूहों पर फेंक दिया तो इसके मुंह के शोलों की एक कतार निकली और सीधी इन रूहों से जा टकराई, मगर सिवाय एक झटका लगने के इन पर कोई असर ना हुआ। भोलेनाथ ने अपना वार खाली जाते देखकर दोबारा एक मंत्र पढ़कर इन पर फूंक दिया। इस बार इसके पांव की उंगलियों से 10 अजदहे अपने मुंह खोले सब्ज रंग के पानी की फुहार फेंकते इन रूहों की तरफ बढ़े। रूहें इन्हें अपनी तरफ बढ़ते देखकर उछल कर पीछे हटी। इनके अंदाज से जाहिर होता था कि वो खौफजदा हो गई हैं। भोलेनाथ ने पैरों को हरकत देते हुए इस तरफ घुमाई जिस तरफ रूहें उछल कर हो गई थी। अजदहे भी लहराते हुए इसी जानब हो गए। इनके मुंह से खौफनाक फंकारें निकल रही थी और पानी की फुहारें इन रूहों पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से इनके चेहरों पर तकलीफ के आसार फैले हुए थे। आसपास का इलाका इनकी भयानक चीखों से गूंज उठा। इनके चीखने से लगता था जैसे किसी वीराने में सैकड़ों रूहें मिलकर बैन कर रही हों। कुछ ही देर में वहां रूहों का निशान भी बाकी न रहा। भोलेनाथ ने सुकून का सांस लिया और अपनी शक्तियों की बदौलत साधु के इस हरबे को भी नाकाम कर चुका था। ये एक तंगो तारीख कमरा था जिसकी दीवारों का रंग गहरा नीला था और इसकी छत पर एक इकलौता बल्ब जल रहा था। बल्ब का होना न होना बराबर था, क्योंकि इसकी कमजोर रोशनी कमरे की तारीकी को दूर करने से कासर थी। साधु कमरे के बीच एक दरी बिछाए अपने सामने एक तरशोल गाड़े आसन जमाए बैठा था। तरशोल के तीनों कोने आसमान की तरफ उठे हुए थे। तरशोल के बीच वाले सरिये की नोक पर एक बंदर की खोपड़ी टंगी हुई थी जिसकी आंखें जिंदा थीं और इसके मुंह से एक लंबी जबान बाहर तक लटक रही थी। तरशोल के साथ ही एक परात में कोयले दहक रहे थे। साधु मंत्र पढ़ते हुए एक भूरे रंग का सफूफ कोयलों पर फेंकता जा रहा था, जिसके जलने से कमरे में अजीब सी बू फैली हुई थी। 1 घंटे तक मुसलसल जाप करने के बाद साधु ने बंदर की खोपड़ी तरशोल से उतारी और इसकी बाहर तक लटकती जबान को हाथ से पकड़कर झटके देने शुरू कर दिए। हर झटके के बाद बंदर की जिंदा आंखों में तकलीफ के आजार उभरते साफ दिखाई देते। मुसलसल 6-7 झटके देने के बाद अचानक कमरे का इकलौता बल्ब बुझ गया और इसके सामने दीवार ट्यूबलाइट की रोशनी की मानद दूधिया रंग में बदल गई थी और फिर इस पर एक बहुत बड़े बंदर की छवि उभरने लगी। बंदर की दुम इसकी जिसामत से 5 गुना बड़ी थी और वो बैठने के अंदाज में पोज बनाए हुए था। इसकी खूंखार आंखों में वहशत टपक रही थी। ये हनुमान देवता था जिसके पास गोगिया पाशा जादू का अमल था। साधु ने इसे देखते ही एक नामानूस जबान में श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। हनुमान देवता ने इसे देखते ही मुंह खोला और कहने लगा, क्या कशट है मूर्ख, हमें नीलम वादी की तारीखों से क्यों आना पड़ा है? क्या तू नहीं जानता कि ये हमारे जाप करने का समय था? तुम पर कौन सी ऐसी विपदा आन पड़ी है कि हमें अचानक अपना जाप अधूरा छोड़कर यहाँ आना पड़ा? हनुमान देवता के लहजे में बला की तेजी थी। देवता के चरणों में अपना सर रखता हूँ। देवता की नाराजगी को दूर करने के लिए मैं एक सुंदर कन्या का दिल पेश करता हूँ। शायद इस कारण मैं नर्क भोगने से बच जाऊँ। साधु ने इसकी बात सुनकर खुशामद लहजे में कहा, कहो क्या देवता आन पड़ी है? जवाब में साधु ने इसे तमाम रुदात कह डाली। हनुमान देवता सर हिलाते हुए इसकी राम कहानी सुनता रहा। आधा घंटा
घंटा तक मुसलसल बोलने के बाद साधु खामोश हो गया। मूर्ख, इस संसार में तो अकेला ही शक्तिमान नहीं है, कुछ ऐसे शैतान भी इस धरती पर जन्म लेते रहे हैं जो अपनी बड़ी बड़ी शक्तियों के कारण छोटे छोटे शैतानों की हत्या करते रहे हैं। भोलेनाथ एक बड़ा शैतान है, इसके मुकाबले में तुम्हारा हासिल किया हुआ इल्म का नाकाफी है। तुम इसके रास्ते में रुकावटें तो डाल सकते हो लेकिन इसके सामने मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अब अगर तुम गोगिया पाशा के कारण इसको रोकना चाहते हो तो मुझसे ले लो, लेकिन ये याद रखो कि वो तुमसे बड़ा शैतान है, इसलिए इसकी शक्ति मोरपंख की मूठ गोगिया पाशा से ज्यादा ताकतवर है। हनुमान ने जवाब में इसे तफसील से बताया। साधु आंखें फाड़े और मुंह खोले इसकी बातें सुन रहा था। अब तक तो इसे ये उम्मीद थी कि हनुमान देवता इसको कोई उपाय बता देगा तो वो भोलेनाथ का क्रियाक्रम कर देगा, मगर इसकी बातें सुनकर इसे अपनी जिंदगी की फिक्र पड़ गई थी। लेकिन इसके साथ साथ इस बात की उम्मीद जरूर थी कि इसका जर बिच्छू तक पहुंचना मुश्किल होगा, लेकिन क्योंकि इसने इस बिच्छू को काली पहाड़ियों के एक तारीख गार में छुपा रखा था, मगर इसे इस बात की फिक्र जरूर थी कि अब तक इसके ताबे रूहें मुसलसल हलाक होती जा रही थी और भोलेनाथ मौत के कारिंदे की तरह मुसलसल इसकी तरफ बढ़ रहा था। मेरी मानो तो फौरन पाताल के तीसरे हिस्से में जाकर छुपो, वरना भोलेनाथ ने अचानक यहाँ पहुंचकर तुम्हारा यकीनी खात्मा कर देना है। देवता ने इसे सोचों में गुम देखकर मशवरा दिया। ठीक है, मुझे ये बात पसंद आई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु ने फौरन इस बात में सर हिलाते हुए कहा। इसकी ये बात सुनते ही हनुमान की छवि दीवार से गायब हो गई और अब पहले की तरह दीवार का रंग गहरा नीला हो गया और बल्ब दोबारा रोशन हो गया। साधु ने सामान समेटा और कार से बाहर निकल आया। रूहों का खात्मा होते ही भोलेनाथ ने दोबारा सफर शुरू कर दिया। चांद की धुंधिया रोशनी में भयानक कार कुछ ज्यादा ही खौफनाक लग रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद इसने एक मंत्र पढ़ा, फिजा में फूंका तो तब धारी हाजिर हो गया। क्या हुक्म है महाराज? इसने अपने पर फड़फड़ाए। तब धारी, अब मुझे बताओ क्या करना होगा। अब जबकि सामने काली पहाड़ियां हैं, अब मुझे क्या पता कि साधु की कौन सी गार में छुपा बैठा है। भोलेनाथ ने इसको देखते हुए कहा, महाराज मुझे आज्ञा दे, मैं अभी इसका पता चला लेता हूँ। तबदारी ने इससे इजाजत लेते हुए कहा। ये सुनते ही तबदारी गारों की तरफ उड़ गया। भोलेनाथ जमीन पर ही बैठ गया और इसका इंतजार करने लगा। चारों तरफ एक सुकून सी कैफियत तारी थी। खामोश फिजा में कहीं कहीं बड़ी बड़ी स्याह चमगादड़ें उड़ती फिर रही थी और चांद एक गोल ढाल की मानंद आसमान पर रोशन था। काली पहाड़ियों को देखकर यूं लगता था जैसे बहुत से देव सर उठाए खड़े हों और उन्होंने अपने बड़े बड़े मुंह खोल रखे हों। वो टिकटिकी लगाए इस तरफ देख रहा था जिस तरफ तबदारी परवाज कर गया था। थोड़ी देर बाद इसे तबदारी वापस आता दिखाई दिया। इसकी परवाज से लगता था कि वो कोई खास चीज देखकर आया है जिसके मुतालिक वो भोलेनाथ को जल्द अज जल्द आगाह करना चाहता है। भोलेनाथ इसको वापस आता देखकर उठ खड़ा हुआ। तबदारी ने आते ही इसे बताया कि सामने नजर आने वाली तीसरी पहाड़ी के छठे गार में साधु एक जाप करने में मसरूफ है और इसकी जान वाला बिच्छू 8वीं पहाड़ी के 15वीं गार तारीखों में छुपा हुआ है। इसलिए बजाय इस साधु को खबरदार करने के इस सर बिच्छू के पास पहुंचकर इसका खात्मा करना चाहिए। तबदारी ने इसके पास पहुंचते ही तेज तेज लहजे में इसे बताया, ठीक है, मैं अभी इस सर बिच्छू के पास पहुंचता हूं। भोलेनाथ ने इसकी बात सुनकर फौरन हामी भरते हुए कहा। इसने जल्दी जल्दी पहाड़ियां गिनी और 8वीं पहाड़ी के 15वीं गार के दाने में दाखिल हो गया। गार में तारीकी फैली हुई थी और इसमें अजीब सी बदबू फैली हुई थी। यूँ लगता था जैसे इसमें बहुत से इंसानों का खून किया गया हो। वो नाक सुकेड़ कर आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे तारीकी चढ़ती जा रही थी। कुछ देर चलने के बाद इसके सामने एक चौराहा आ गया जिसके चारों तरफ तंग राहदारियां बनी हुई थी। वो सोचने लगा कि किस तरफ चला जाए। इसने कुछ सोचते हुए दाएं तरफ नजर आने वाली राहदारी पर कदम रख दिए। राहदारी के आगे चलकर तंग हो गई और आगे मजीद जाकर एक संगी दीवार थी। वो आपस में पट पड़ा। दोबारा चौराहे में आकर इसने बाएं राहदारी में कदम रख दिए। कुछ देर चलने के बाद इसके सामने कुछ सीढ़ियां नीचे तहखाने की तरफ नजर आती दिखाई दी। इसने नीचे करने के बाद वो एक कुशादा गार में आ गया। गार के बीचों बीच एक प्याले नुमा जगह बनी हुई थी। वो तेज तेज कदम उठाता जैसे ही प्याले नुमा जगह के करीब पहुंचा तो इसे इसके अंदर एक बहुत बड़ा जर्द रंग का बिच्छू बेकरारी के आलम में टहलता नजर आया। बिच्छू का हुजम बड़ी बतख के बराबर था और इसके जिस्म में
زرد رنگ کا پانی دور سے نظر آ رہا تھا۔ یہ زہر تھا، بہت مہلک جس کا ڈسا پانی نہ مانگے۔ اس کے آس پاس پتھریلی زمین سیاہ ہو گئی تھی۔ یہ اس کی زہریلی سانسوں کا اثر تھا۔ بھولے ناتھ اور اس کے درمیان تقریباً 40-50 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ اس نے جلدی سے چرنی تھیلے میں ہاتھ ڈال کر تیر نکالا جس کے پیچھے کے حصے پر ایک ربڑ چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے اس تیر کے آگے حصے پر ایک منتر پڑھ کر پھونکا اور اس زرد بچھو کا نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ تیر ہوا کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے بچھو کی جانب بڑھا اور جیسے ہی وہ اس کے نزدیک پہنچا ایک دم واپس پلٹا اور تیزی سے بھولے ناتھ کی جانب بڑھنے لگا۔ بھولے ناتھ جو تجسس سے بچھو پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، تیر کو واپس پلٹتے دیکھ کر بکھلا کر ایک دم پیچھے ہٹا اور اس کا طرح پیچھے ہٹنا اس کے لیے زندگی کا باعث بن گیا، ورنہ تیر اس کی پیشانی میں گھس چکا تھا۔ تیر واپس پلٹتے دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ بچھو کو طلسمی طریقے سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کا کوئی اپائے کرنا ہوگا۔ ابھی وہ اسی ششوپنج میں مبتلا تھا کہ اچانک غار میں ایک خوفناک آواز گونجی اور اس کے سامنے دھواں سا پھیلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے سادھو کا روپ دھار لیا۔ بھولے ناتھ اسے دیکھتے ہی سنبھل گیا۔ سادھو نے نمودار ہوتے ہی اس کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بھولے ناتھ تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ میں تمہیں خبردار کیا بھی تھا کہ تم میرے راستے میں نہ آؤ۔ اگر تم نے جاب میں خلل ڈال کر اپنی موت کو خود دعوت دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس پر ایک منتر پڑھ کر پھونک دیا۔ اس کے منتر پھونکتے ہی فضا میں ایک بہت بڑی گدھ نمودار ہوئی اور اس نے چیختے ہوئے بھولے ناتھ پر حملہ کر دیا۔ بھولے ناتھ ابھی اپنے بچاؤ کی صورت سوچ ہی رہا تھا کہ گدھ نے اچھل کر اس کے سینے پر پنجہ رکھ دیا۔ پنجہ کھاتے ہی بھولے ناتھ کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی وزنی ہتھوڑا اس کے سینے پر مار دیا گیا ہو۔ اس کے منہ سے ایک سسکاری نکلی اور وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ نیچے جھکتے ہی اس نے یکدم ایک منتر پڑھا اور سادھو کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ کی مٹھی بند کر کے کھول دیا۔ ایسا کرتے ہی اس کے ہاتھ سے چنگاریاں نکل کر سادھو کی جانب پڑی، مگر سادھو نے بھی جلدی سے کالم علم کا ایک اور واق گوکیا پاشا اس پر پھونک دیا اور بھولے ناتھ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں کسی نے کھولتا ہوا پانی بھر دیا ہو۔ پھر یہ پانی اس کے جسم سے باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے جسم پر سیاہی بلبلے بننا شروع ہو گئے اور بلبلہ بنتے ہی وہ پھٹ جاتا۔ پھر اس کے گندے مواد اسے مزید بلبلے پیدا ہو جاتے۔ یہ کالے علم کا ایک خطرناک اور بھیانک وار تھا جسے گوکیا پاشا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بھولے ناتھ بھی ایک شیطان تھا۔ اس نے سسکتے ہوئے اور تکلیف سے کراتے ہوئے جلدی سے ایک منتر پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک دیا تو ان کے بننے والے بلبلوں میں کمی ہونے لگی اور اس نے اپنی ایک شکتی کا بلیدان کر کے مانگ شیو سران کا وار کر دیا۔ سادھو جو دور کھڑا تھا یہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے پھر گدھ کو اشارہ کیا، مگر اب بھولے ناتھ سنبھل گیا تھا۔ اس نے تھیلے سے ایک سوئی نکالی جس کے سرے پر ایک سفید موتی ٹنگا ہوا تھا۔ اس نے موتی کو پکڑ کر کھینچا تو اس کے ساتھ لگا دھاگا کھینچتا چلا گیا اور جب وہ گز بھر کا ہو گیا تو اس نے ایک منتر پڑھ کر اسے گدھ کی جانب اچھال دیا۔ موتی سوئی سمیت تیر کی طرح اڑتا ہوا گدھ کی جانب بڑھا اور اس کی گردن میں اس کا دھاگا پھنس گیا اور سوئی اچھل کر اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ گدھ ایک جھٹکا کھا کر پیچھے کی جانب اچھلا اور دھک کی آواز سے زمین پر آن گرا۔ سادھو نے یہ دیکھتے ہی فرار کی کوشش کی، مگر اب بھولے ناتھ اس کو سنبھلنے کا موقع نہ دینا چاہتا تھا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر اس پر پھونک دیا۔ اچانک کہیں سے ایک لوہے کی تار نمودار ہوئی، اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سادھو کے ساتھ لپٹنا شروع ہو گئی۔ سادھو نے اپنے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اپنے بچاؤ کی بہت کوشش کی، مگر تار نے اسے مضبوطی سے جکڑ لیا تھا۔ اسے باندھتے ہی اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک لڈو نکالا جس کے اندر کالے رنگ سے دھاریاں بنی ہوئی تھی اور ان دھاریوں پر سفید سفید نشان بھی نمایاں تھے۔ اس نے لڈو ہاتھ میں لیتے ہوئے بچھو کی جانب اچھال دیا۔ لڈو لڑکتا ہوا تیزی سے بچھو کی طرف بڑھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس پر بنی دھاریوں نے 6 کالے ناگوں کا روپ دھار لیا جن کے جسموں پر سفید سفید نشان واضح دکھائی دے رہے تھے۔ وہ یکدم پھنکارتے ہوئے بچھو کی جانب بڑھے اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اچھل کر اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکل کر بچھو کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ بچھو نے اپنی جان بچانے کی بہت کوشش کی، مگر ان سانپوں کے حملے سے خود کو نہ بچا سکا۔ ادھر بچھو کو جیسے ہی آگ نے گھیرا، ادھر سادھو کو جسم کو آگ لگ گئی اور غار میں اس کی بھیانک چیخیں اٹھیں اور پل بھر میں زرد بچھو کی زرد راکھ وہاں پڑی تھی اور سادھو بھی راکھ کے ڈھیر کی صورت میں وہاں پڑا تھا اور اس کے مرتے ہی ایک
तेज सुर्ख आंधी चली और एक भयानक आवाज सुनाई दी। मारा मुझे भोलेनाथ ने कि मैं जीवन रक्षा के लिए जाप कर रहा था। इसके बाद ना तो वहाँ गार थी और ना ही काली पहाड़ियाँ थी, बल्कि भोलेनाथ एक दरख्तों के झुंड के नजदीक खड़ा था। झुंड पार करके जैसे ही वो बाहर निकला तो सामने मूरत नगर की सरहद थी। इसे राजा बेहराम दास ने अपने दोनों बेटियों के साथ खड़ा नजर आया। इसे देखते ही वो दौड़कर इससे लिपट गया। फिर वो इसे महल में ले गए और भोलेनाथ ने इसे तमाम तफसीलात सुनाई। तफसीलात सुनकर राजा बेहराम दास कहने लगा कि साधु के मरते ही एक तेज आंधी आई और इसमें साधु के मरने की आवाज सुनाई दी थी, तो हम समझ गए थे कि वो नर्क में पहुंच गया है। तो हम 2 दिनों से तुम्हारे इस्तकबाल के लिए सरहद पर खड़े हैं। बाद में ईश्वर में भी यहाँ पहुंच गया और इसने भी भोलेनाथ को शाबाश दी। भोलेनाथ ने कुछ दिनों तक मूरत नगर रहने के बाद वापसी की आज्ञा चाही। उन्होंने इसे कुछ दिन मजीद रखने के लिए कहा, लेकिन वो वापसी के लिए बजिद रहा। वो सब इसे मूरत नगर की सरहद तक छोड़कर वापस लौट आए। ये थी जादू नगरी की एक खौफनाक कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी तवील थी। इस तरह की और मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें। कहानी पसंद आने की सूरत में लाइक, कमेंट्स और शेयर लाजमी कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।